Hello everyone, welcome to Obtuses. In today's video, we are going to solve three important questions regarding the mathematical portion of CUET PG exam. In two questions, we will be dealing with the different density function, different distributions, and in the last question, we will be dealing with the correlation problem. And in these three questions, we will cover all the important things related to these topics. So before starting the video, I humbly request you, please, those who are watching and hasn't subscribed the channel, kindly do subscribe this channel, and those who are seeing the video for the first time, we humbly request you kindly subscribe the channel, because it will not cost you anything. All you have to do is just press a button for the subscription and you can subscribe this channel. So I hope you all have subscribed. Okay, so let's start the video. And now I will switch my language between English and Hindi so that everyone should understand what I am trying to say. तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेंगे. तो क्वेश्चन बोलता है, कंसीडर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ टी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है. द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एफ टी 1+t फॉर -1 to 0, -1 से 0 के लिए 1+t and 1 - t for 0 to 1. So you have given a probability distribution function and you have to find the standard deviation of the random variable. So you all know, if you have studied about standard deviation is, what is the formula of standard deviation? If you all know, it is under root of variance. Okay, so let me write it, under root of variance. And now how will you calculate the variance? अगर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक का रिवीजन किया होगा या पढ़ा होगा, then you all will know that variance, if I have to calculate variance, it is equal to E t square minus E of t whole square. This is the formula to calculate variance. Now the problem is, what is E of t? Okay, अभी हमें ये ध्यान देना कि E of t क्या है. हमने तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है. E of t is mean. E of t is mean and it is calculated in case of probability distribution function from -infinity to +infinity t f of t dt. This is the general formula to calculate mean. Okay, so this is the formula. First of all, write this formula. आप सब लोग ये formula लिख लेंगे कि कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं. मीन से हम वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही बेसिक से हमें एंड तक आना है, बट ये आपके सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टडीड स्टैटिस्टिक विद अ ग्रेट थिंग. अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, देन डू वन थिंग, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन स्किप अ बिट एंड चेक योर आंसर. तो आप स्किप करके आंसर चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. वी हैव ऑलरेडी नोन द फार्मूला that it is -infinity to +infinity t of ft. So now what will I do? I will put the value because we have to find E of t. Then E of t is equal to integration -infinity to +infinity. Then I have given two inequalities. दो inequality हमारे पास हैं. तो what will I do? -infinity to -1. तो यहाँ पर there is no function. I will write it 0 dt plus -infinity to 0. I have given one function. I will write t into 1 plus t according to the formula. I am going dt, then plus 0 to 1 I have another function t into 1 minus t dt, and then for 1 to infinity I have no function, then it is a 0 into dt. This is the way to find E of t. This will be 0, this will be 0. Now we have to solve these two integration, which is very basic integration, all of you can do. तो perform these integration, आप इसको करो जाके and you will find the value of E of t is, I will do the integration. E of t is, after integrating the function from -1 to 0, it will come as t square divided by 2 plus t cube divided by 3 from -1 to 0 plus t square by 2 minus
टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट इट एज 0। तो आपका मीन जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड वेरिएंस। ओके, तो पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर जानी चाहिए। नाउ यू हैव टू फाइंड वेरिएंस। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वेरिएंस वी हैव स्टडीड? I will write VAR for the variance. It is E of T, E of T square minus E of T whole square. Now E of T square is, just put T square F of T dt from minus infinity to plus infinity. And you have already find the value of E of t, which is 0, so minus 0 square, which means now you have to find minus infinity to infinity t square into f of t dt. Now you all can do this integration. It is the same process. Okay, it has the same process like the previous integration. जैसा कि लास्ट में हमने किया था, एकदम से सेम वही प्रोसेस है। तो उसमें क्या करना है, इसमें बस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, फंक्शन को सेम रख देना है। तो जब इसको आप करेंगे तो ये कैसे बनेगा, मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग स्टेप्स को कॉपी कर रहे होगे। तो माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 से 0 टी स्क्वायर 1 प्लस टी डी टी प्लस 0 to 1 टी स्क्वायर 1 माइनस टी डी टी। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या पाएंगे, 1/6। आई होप यू ऑल नो द इंटीग्रेशन एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। तो आप इसमें पाएंगे 1/6। तो आपका वेरिएंस आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस VAR विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/6 एंड इट इज़ 1/√6। तो आपका ऑप्शन नंबर 1/√6 अगर देखें तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपने क्या क्या सीखा कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे एकदम बेसिक तरीके से, अगर आपको फार्मूला याद है यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। तो ये था पहला क्वेश्चन। आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। बट बिफोर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टेस्ट सीरीज टॉपर्स मॉक टेस्ट। अब 70+ टेस्ट हमने देने को बोला है। नाउ करेंटली 80 टेस्ट आर एक्टिव एंड ये टॉपिक वाइज हैं जो आपके सारे सिलेबस को कवर करते हैं और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट समय पे टेस्ट सीरीज़, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आपका रिवीजन होगा और उतनी अच्छे से आपकी कमियां पता लगेंगी। सो डू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका एडमिशन जो है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हो और आप अच्छे से आगे की पढ़ाई कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सेकेंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिगार्डिंग योर कंसेप्ट पर्पस। अगर आप कंसेप्चुअल पर्पस से देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका क्वेश्चन। रैंडम वेरिएबल x टेक्स ऑन द वैल्यू 1 2 3 विद प्रॉबिलिटी 2 + 5p/5 1 + 3p/5 एंड 1.5 + 2p/5 रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ p एंड ex, आपको p और ex की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ विल वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। आप सभी लोग को एक चीज़ पता होगा कि अगर प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रॉबिलिटी मास फंक्शन दिया है तो आप ये जानते हैं कि सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू 1 होना चाहिए। सारी प्रॉबिलिटी का सम आप जब करेंगे तो वो 1 आएगा। सो हमारे पास 3 प्रॉबिलिटी है, इन तीनों को आपस में हम अगर जोड़ दें तो देखिए जोड़ते हैं तो ये चूँकि आपके डिनोमिनेटर्स आर सेम सो वी कैन ईजिली ऐड न्यूमरेटर। तो 2 + 1 3 3 + 1 4.5 प्लस 2p 3p 5p 5 5 10p divided by 5, this is equal to 1. Cross multiply it, you will get p equal to 0.05 if you will solve it. बहुत ही आसान तरीके से हमने p की वैल्यू निकाल ली। So there is 2 options जिनके पास p की वैल्यू में 0.05 है। Let's see which one is correct. अब आपको क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है e of x। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने e ऑफ x का फार्मूला देखा था, बट वो आपने देखा था कंटिन्यूस फंक्शन में। यहाँ पे मास फंक्शन है तो हम थोड़ा डिस्क्रीट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का साइन समीशन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसे की वैसे ही रहती हैं। तो ये आ गया
अभी आपको x क्या क्या दिया हुआ है, 1, 2 और 3 दिया हुआ है, तो रिस्पेक्टिव प्रॉबिलिटीज़ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, p की वैल्यू भी इसमें पुट कर देंगे। तो मतलब आप कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 5p/5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3p/5 प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस 2p/5। ठीक है, तो अभी आपको p की वैल्यू पता है, यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ p, just put the value of p 0.05 here and solve it. You will get e of x equal to 1.87. 1.87. So option A is correct. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, hardly it will take 1 minute, hardly. So all you can do, if you know the concept and if you have already studied about it in a very good manner, अगर आप अच्छे से इसको पढ़े हैं तो आप सभी लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आई गेस इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कोरिलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वंस अगेन आपको एक रिमाइंडर मैं दे देता हूँ कि ज़रूर ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज़। अगर आप MA इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही पार्ट ए आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, पार्ट ए। तो अगर आप पार्ट ए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 150 में आपको 100+ टेस्ट मिल जाते हैं, तो इसको भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो सेम नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को वहाँ पर कवर करेंगे हम पार्ट ए में। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ज्वाइन करना आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कोरिलेशन के उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। So this is very basic question from correlation. It says consider the following regression equations obtained from a correlation table. एक correlation table से दो regression की equation बनाई गई हैं। First equation is y equal to 0.516 x plus 33.73 and second equation is x equal to 0.512 y plus 32.52. This is the two regression equation from a correlation table. What you have to find? You have to find the value of correlation coefficient. So you all know correlation coefficient is known as R, and it is equal to, from regression point of view, it is equal to byx multiply by bxy. तो ये इसका फार्मूला होता है byx and bxy. अब what is byx and what is bxy? तो अगर आपकी इक्वेशन is written in the form of y equal to byx into x plus something c, या आपकी इक्वेशन x equal to bxy into y plus something d, ऐसे लिखी होती हैं इक्वेशन। तो ये वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये आपके byx एंड bxy होते हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन कंपेयर। अगर आपको फार्मूला याद है तो यू कैन कंपेयर एंड यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड, byx equal to 0.516, यहाँ पे पहले y था, so that we have written byx, and bxy is equal to 0.512. Now r equal to root of, multiply these things, 516 and 512, 0.512, and take a root, you will get the answer. If you will do the calculation, it will come 0.514. तो ये फार्मूला रिवाइज हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो ये आपको बहुत ही टफ लगेगा। सो लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको, कि वी आर कंसिडरिंग टू कंडक्ट अ कंसेप्ट फ्रॉम क्वेश्चंस, ओके, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन क्लास। अगेन हमने पहली क्लास कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की ली थी, इन विच वी हैव कवर्ड सेट। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था इसलिए हम केवल सेट ही कवर कर पाए, बट वी आर प्लानिंग फॉर इट। अगर अच्छा हमें रिस्पांस मिला तो हम जो है सेट नेक्स्ट क्लास भी लेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू सारे कंसेप्ट को भी रिवाइज़ करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर अच्छे अमाउंट में वहाँ आते हैं तो हम ज़रूर उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सारे कंसेप्ट को कवर करके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करके, रिवाइज़ करके एग्ज़ाम तक अपने आप को मैथमेटिक्स पोर्शन से डील करने के लिए तैयार कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपका अच्छा खासा साथ चाहिए। अच्छे खासे साथ के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे अगर जब भी लाइव क्लास हो तो आपको पता लग जाए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लाइव क्लास जब भी होगी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे।
और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी करने में मज़ा आएगा क्लासेस को। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।